اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ مجھے افسوس ہے کہ تقریباً 2 مہینہ 10 دن میں علیل رہا، جس کی وجہ سے یہ درس کا سلسلہ ٹھہر گیا تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے درس جو ہے نا، الحمدللہ 44 سیشنز کمپلیٹ کر چکے تھے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ 45th لیسن ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے کنٹریز میں یا ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی دینی مدرسے سا ایکسیس نہیں ہونے کی وجہ سے دینی تعلیمات جو بیسک نالج جس کی بچوں کے لیے ضرورت ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انہی بچوں کے لیے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو اکیلے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے نہ معلوم کسی ایسے بچے تک کچھ باتیں پہنچ جائے، ورنہ میں کیا، میری حیثیت ہی کیا کہ میں کوئی درس لے سکوں۔ میری یہ کوشش ہے اپنی طرف سے کہ بچوں تک بیسک نالج کم سے کم پہنچا سکوں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے جناب شیس۔ جناب شیس کی جو پیدائش ہوئی، جناب حابیل کی شہادت کے بعد آدم اور حوا بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، کیونکہ قابیل نے اپنی الگ سے دنیا بسا لی تھی۔ وہ نرم زمین پر چلا گیا تھا اور وہاں پہ باغات وغیرہ کرنے لگا تھا، اور اس کی جو بھی اولاد تھی وہ خدا کے خلاف، آدم کے خلاف۔ اور ادھر جناب آدم کے ہاں جناب شیس تشریف لائے۔ شیس کا مطلب ہے عطیہ، نعم البدل، یعنی حابیل کے بدلے میں اللہ نے شیس عطا کیا، جس سے جناب آدم بہت محبت کرتے تھے، اور جناب شیس نے جناب آدم سے تعلیم حاصل کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جناب آدم کو اللہ نے دنیا کی ہر شے کا علم عطا کیا تھا، اسماء کا علم عطا کیا تھا، ہر شے کے اسماء جناب آدم جانتے تھے۔ یہی فرق ہے مولا کائنات میں اور آدم میں، جس کے پاس اسماء کا علم ہو اسے آدم کہتے ہیں، جو ہر شے کا علم رکھتا اسے علی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جانتے تھے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جناب آدم نے جناب شیس کو علم دینا شروع کیا، اور جناب شیس اپنے بابا سے علم سیکھنے لگے۔ پھر اللہ نے صحیفے نازل کیے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ نے 104 صحیفے نازل کیے، جس میں سے 50 صحیفے جناب شیس کے پر آئے۔ تو آپ سوچیں کہ جناب شیس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے ابتدائے دنیا میں۔ تو جناب شیس جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ شہروں میں کیسے رہنا چاہیے، اور وہ صحیفے کیا تھے؟ کوڈ آف لائف تھی، لائف کیسے گزارنا چاہیے۔ جناب
आदम जब बीमार हो गए तो अपनी औलाद से कहा कि मुझे जन्नत के फल बहुत याद आते हैं। ऐसी बात है, जो शख्स जन्नत में रहा हो, जो नबी जन्नत में रहा हो, फिर उसके बाद इस दुनिया में आ जाए तो कैसे इस दुनिया में खुश रह सकता है। जन्नत में और दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया की नेमतें आती है, चली भी जाती है। आज मेरे पास ये टोपी है, कल नहीं रहेगी। आज ये चश्मा है, कल नहीं रहेगा। आज ये लिबास है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जन्नत की जो नेमतें हैं वो सदा रहने वाली हैं। हम छोटी सी नेमतों को जो सदा नहीं रहती उसके पीछे इतने पड़े रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जन्नत की नेमतें सदा बहार नेमतें, वो कभी ख़त्म नहीं होती वो नेमतें। दुनिया के लिबासों में कलर्स होते हैं, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, वाइट है, ब्लैक है। एक कलर का एक लिबास, या 4-5 कलर मिला दिए तो भी एक लिबास हो सकता है। लेकिन जन्नत के लिबास के बारे में है कि एक एक कुर्ते में हज़ार कलर्स होंगे। तो इंसान को वहाँ की ख्वाहिश रखना चाहिए, यहाँ की नहीं। उसी तरह से दुनिया के फलों में जन्नत के फलों में बड़ा फ़र्क है। दुनिया के फल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसका जायका ख़त्म हो जाता है, बदबूदार हो जाते हैं। लेकिन जन्नत के फल कभी सड़ते नहीं, ख़राब नहीं जाते। तो बहरहाल जनाब आदम ने जब कहा तो औलाद आदम निकली तलाश के लिए। फ़रिश्ते मिले, कहा कहाँ जा रहे हो? कि जन्नत के फल हमारे वालिद साहब जो है याद कर रहे हैं, हम तलाश में हैं। तो फरिश्तों ने जो इंसानी शक्ल में आए थे उनके पास जनाब आदम का कफन भी था, काफुर भी था, जन्नत से लेके आए थे। कहा कि देखो इस वक्त तुम वापस अपने बाप के पास जाओ, इसलिए कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है और वो दुनिया से गुजर जाने वाले हैं। तो वापस आए तो फरिश्तों ने जनाब आदम की जब रूह कब्ज़ करना चाही तो जनाब हव्वा ने जब देखा तो पहचान गई, आके आदम से चिमट गई, कि मैं इन्हें जाने नहीं दूँगी। फरिश्तों ने कहा कि देखो ये निज़ाम में कुदरत है, लिहाजा आपको सब्र करना पड़ेगा। बहरहाल जब जनाब आदम की रूह कब्ज़ हुई तो सबसे पहले जो गुस्ल कफन हुआ वो फरिश्तों ने जनाब आदम को दिया और औलाद आदम को सिखाया और कहा कि आज के बाद तुम्हारा तरीक़ा यही होगा। तो सबसे पहले कफन पहनाया गया था जनाब आदम को, गुस्ल दिया गया था जनाब आदम को। अब उसके बाद जनाब शीस अपनी कौम की जो है ना तबलीग करने लगे। और ये वो वक्त था जब काबिल ने ज़मीन पर, ऐसी ज़मीनों पे जो नरम ज़मीनें हैं और सरखेज़ ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ ज़मीनों पे उसने कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ पे उसके बागात वग़ैरह, इधर इसकी नस्ल भी फैल रही थी, उधर जनाब आदम की नस्ल और जनाब शीस की नस्ल भी फैल रही थी। वो लोग अल्लाह वाले थे, पहाड़ों पे रहते थे और उनकी औरतें बाहया होती थी और काबिल की नस्ल की औरतें बेहया होती थी। शैतान ने काबिल के कबीले में जाकर बांसुरी का ईजाद किया, यानी बांसुरी उनके सामने रखी क्या इसको ऐसे बजाया जाए। तो म्यूज़िक इस तरह से चला, काबिल के नस्ल में म्यूज़िक चलने लगी, जो जनाब शीस के यहाँ उनकी शरीयत में यह हराम थी। और वहाँ की औरतें चूँकि बेहया हुआ करती थी, लिबास छोटे छोटे पहना करती थी बहरहाल। तो एक दिन इत्तेफाक से शीस के कौम का भी एक जवान उधर आ गया, उधर मेला हो रहा था। उसने जब वहाँ की औरतों को देखा तो जवान जाके अपने कबीले के लोगों में बताया, तो उन लोगों ने आके देखना शुरू किया और म्यूज़िक जब सुना तो उसकी तरफ राग़िब होने लगे। अब शैतान का काम तेज़ हो गया। नतीजा ये हुआ कि शीस समझाते रहे लेकिन नौजवान नहीं मानते रहे। कहने का मकसद ये है इन चीज़ों से कि सबसे पहले प्यारे बच्चों इस चीज़ को याद रखना कि शैतान जो बहकाता है ना, म्यूज़िक के ज़रिए से और औरतों के ज़रिए से बहकाता है। जहाँ इंसान उस बहकावे में आ जाता है फिर उसकी दुनिया भी चली जाती है और आखिरत भी चली जाती है। इसी के साथ आज का सेशन हम तमाम करते हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह
یہاں سے پھر سے درس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ 45واں لیسن رہا. آپ اس کو ضرور آگے بڑھائیے گا اور ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیے گا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.